Hi, I'm Brinda Agarwal, and thank you for joining us on this edition of ICANN Facebook Live. Let me begin this session by telling you a little bit about ICANN. ICANN, India COVID Action Network, is an initiative to help underprivileged communities that have been hardest hit due to COVID 19. It is an online platform that connects those who are in need of help and those who can provide it. Our COVID warriors work from home, activating their on ground community networks and mobilizing resources to reach vulnerable sections of society in these difficult times. COVID warriors are spread across India and steadily growing day by day. Now, coming back to our topic, today we have a very interesting topic to discuss. Jaan Bhi Jahan Bhi, reopening of salons, spa, and beauty parlors. Now, soon we will see that we're actually seeing our economies and businesses opening, even knowing that the virus is somewhere out there. There are people still getting infected by it, and unfortunately, there has been some mortality rate as well. Now, what measures can businesses, small businesses, or even large businesses can take to make sure that they open in a responsible way? They are not transmitting COVID 19. Should they be doing more testing with their employees? Should they be going for PPE gear for their employees? And to discuss all of that, we have, let me introduce you to our speakers today. We have two of them. Joining us is celebrity hairstylist and managing director of Shiva's Hair Designer, Shivaram Bhandari. Thank you so much, sir, for joining us today. And Thank you. Thank we you. have the General Secretary of Shorika Samudaya, Misalati Okatu, Karnataka. Apologies for if I'm pronouncing it wrong, Mr. Somashekar Bhandari. His organization Yeah, creates namaste. awareness among local salons and beauty parlors about cleanliness, hygiene, and health safety measures to make sure that they meet the standards defined by the government in the salons. Welcome and thank you so much, the two of you, for joining us today. Namaste, madam. Namaste. Namaste, madam. Thanks, madam. Namaste. तो मैं शिवराम जी से स्टार्ट करना चाहूंगी। सर, अभी सून गवर्नमेंट का प्लान आ जाएगा कि हमें अपने बिजनेसेस को रीओपन करना है, और आपके 20 सैलॉन्स हैं शिवाज हेयर नाम से मुंबई में, एंड आपके 300 एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपको क्या कुछ अलग करना पड़ेगा जब आप अपना सैलून खोलेंगे, ताकि आप एक वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को डील कर पाएँ? हाँ जी, हम लोग एकदम प्रोफेशनल तरीका जो अपना पहले भी एकदम प्रोफेशनल से हम लोग मैनेज करते थे। आगे अभी जो कोरोना का वजह से हम लोग को बहुत मतलब हाइजीनिक लेवल बहुत बहुत सारे बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग चाहे वो पीपी किट हो, फेस मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजर हो, वो पूरा अभी भी अपना पूरा क्लीन पूरा चालू ही है। मतलब पूरा सैनिटाइजर पूरा शॉप में पूरा स्प्रे करना, पूरा ये पूरा मेंटेनेंस वगैरह पूरा ये चालू, मतलब पूरा चालू है 3-4 दिन से। हम लोग का भी ऐसा होप है अपना जून फर्स्ट वीक में खुलेगा करके। और मैं भी अपना एम्प्लॉय को सब पूरा अलग अलग पूरा ब्रांच का पूरा टीम को पूरा जूम कॉल करके उनका भी पूरा आप लोग कैसे हैं, आपका हेल्थ कैसा है करके पूरा उनको मोटिवेशन देता हूँ। आप लोग कुछ घबराना नहीं चाहिए, एकदम पॉजिटिवली रहिए। ये अभी थोड़ा दवा आने तक, इसका वैक्सीन आने तक अपने को इसका साथ में चलना होगा करके उनको पूरा मोटिवेशन करता हूँ। सो मैं यहाँ पर सोमा शेखर जी को लेकर आऊंगी कॉन्वर्जेशन में कि सर, शिवा जी के पास रिसोर्सेज हैं, उनका अपना एक चेन है जिसमें वो काफ़ी मेजर्स लेके आ सकते हैं, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मास्क देना, ग्लव्स पहनना या पीपी किट्स देना। बट जो हमारे छोटे सैलॉन्स हैं, वो कैसे हाइजीन मेंटेन करें? शायद उनके पास इतने पैसे या रिसोर्सेज नहीं है जितना वो उसको उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए। तो आपका संगठन इस वे में कैसे सोच रहा साइड है? बदल। नहीं मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया।
ये बार बार कम्युनिटी का जो है, ये जो बिजनेस करते हैं उसका बारे में भी ये वो एक डिस्कशन, लोगों को एक अच्छा चीज मिले। क्योंकि सैलून बोले तो सब ये कोरोना की वजह से घबराने का चीज है। लोगों का मन में है, बैठा है कि सैलून में गए तो हम लोग को बीमारी आते के ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन सैलून से कभी भी बीमारी नहीं जाएगा, इसका गारंटी हम देंगे। क्योंकि मैं जो बोलने वाला बात है इसे आपको पक्का मालूम पड़ेगा, आपका ऑडियंस को और हम लोग सबको। क्योंकि हम लोग इतना उसका मेजर का एक रख के चल रहे हैं। आपने बताया, सही पता है, शिवराम जी जैसा बड़ा बड़ा सैलून के लिए उनको करने के लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको करना पड़ेगा, शुद्ध मस्त करना पड़ेगा उसको। लेकिन छोटा छोटा वाले के पास पैसा नहीं है, वो तकलीफ में। आपको ये बताने से पहले 2-3 बार वो लोग का बैकग्राउंड भी बताना बहुत जरूरी समझना चाहता हूँ मैं। ये जो बार बार कम्युनिटी है मैडम, ये ग्रामांतर में है, जो वो छोटा छोटा गाँव में जो लोग है, वो लोग का जिंदगी पूरा टोटली कलाप्स हो गया कोरोना की वजह से। ये 55 दिन का जो लॉकआउट आ गया, तो सब बिजनेस के लिए तो थोड़ा थोड़ा लाख को ओपन करके दे दिया, तुम लोग बिजनेस बनाओ। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया, जहां नहीं तो जहां नहीं, तो चालू हो गया। लेकिन कर्नाटक में सैलून पेट ब्यूटी पार्लर चालू हो गया मैडम। आपको हकीकत बताता हूँ मैं, लोगों को अभी भी विश्वास नहीं बैठा है कि हम लोग सैलून पे जाए, हम लोग बाल कटाए। तो बिजनेस का 30% बिजनेस भी आज नहीं है, एक बात है। दूसरा बात, ये जो चीज है हम लोग का जो कम्युनिटी के बारे में, जो हम दो बात बताना चाहता हूँ कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी को मैं लेना चाहता हूँ। वर्ल्ड वाइड आपका ये कार्यक्रम जाएगा, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए हमारा का सामाजिक चिंतन कैसा है, ये लोग कैसा जीते हैं। हम सब कुछ करते हैं एक जो आदमी को, उसको अच्छा दिखने के लिए, उसका हेयर काटने का, उसको ब्यूटिशियन करने का, उसको फेस मैसेज करने का, उसका लुक को अच्छा दिलाने के लिए हम सुबह से शाम तक, रात तक काम करते हैं मैडम। लेकिन ये जो काम करने वाले के बारे में मालूम नहीं आपका अमेरिका में ये प्रोफेशन को कैसा दिखता है, लेकिन इंडिया के बारे में मैं बात करता हूँ तो बहुत ही अपने को दुखदायक है। क्योंकि वो जो कोई भी सोशल हम लोग को इन्वॉल्व नहीं करता है, लेकिन बड़ा होने के बाद कोई सोचता नहीं उसका बारे में। लेकिन जो तबके में, छोटा शहर में, छोटा इसमें, किधर भी उसको कोई भी मान्यता नहीं है। बहुत तकलीफ में वो जीते हैं। सरकार इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। आपका कार्यक्रम सरकार वाले भी देखते हैं, इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, सरकार भी हम लोग के बारे में जरूर देखे। और बहुत तकलीफ में है, वो लोग को भी फाइनेंशियल कोई भी सपोर्ट करे। क्योंकि ये 55 का दिन का जो ब्लैकआउट में, जो लॉकडाउन में, वो लोग टोटली उसका जिंदगी खराब हो चुका है। फिर भी कर्नाटक में जो सैलून सब ओपन हो गया। लेकिन आप बताने के लिए मेरे को बहुत खुशी है, आपने जो पूछा है ये सब करना पड़ेगा, उसको ग्लोव्स ग्लोव्स पहनना पड़ेगा, मास्क डालना पड़ेगा आपको। जी। ये सुन के हैरान हो जाएंगे आप, इतना लोग ने इसमें ये किया कि क्योंकि पहले मेरा जान बचना चाहिए। मेरा जान इसलिए बचना चाहिए कि मेरा पीछे मेरा परिवार है, तो मैं ही बचेगा तो मेरा परिवार बचेगा। और जो ग्राहक जो आएगा वो मेरा भगवान है, उसको मेरे से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट लेके हम लोग काम कर रहे हैं। छोटा छोटा दुकान में भी मास्क और हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइज करने का। और ये छोड़ के मैडम, एक तो आपको फेस शील्ड बोल के आ रहा है, आप वो जी। टीवी में सब देखा होगा, हेलमेट हाँ जी। जैसा दिखता है वो साफ ग्लास वाला। छोटा जी। छोटा दुकान वाला उसको भी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। कर्जा गिर्जा लेके उसको भी कर रहे हैं। और हर कस्टमर आ रहा है उसको सैनिटाइज करेगा पहले, और करेगा। आप सोचेगा तो हैरान हो जाएंगे। आपको जो बड़ा लगे, शिवराम जी सोचेगा तो भी वो बोलेगा क्या बात कर रहे हैं। छोटा छोटा दुकान में जो बाल की सब यूज करेगा, उसको दूसरे को यूज नहीं करेगा मैडम। उसको तो एक सोप ऑयल में जो दबा के रखेगा, वो जो गवर्नमेंट ने वो जो बताया था, वो हाइड्रोक्लोराइड एक साबुन है, उसमें डाल के रखता है। उसका बाद रात को सोचता है, और जो कपड़ा वो डाल देता है कटिंग करने का, बाल कटने का टाइम, वो यूज एंड थ्रो का कपड़ा पहन रहे हैं, उसको 25 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। इसलिए ग्राहक को कोई चिंता नहीं करना चाहिए, वो बिंदास सैलून में आवे, अपना जो भी बाल कटाने का है, शेविंग करने का है, पैसे जो दूसरा जो हम अपना सर काम करना चाहिए बिंदास करे। वही घबराने का जरूरत नहीं मैडम, कोरोना कुछ भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो बाबर कम्युनिटी है उसमें एक अवेयरनेस है कि हमें जो कोरोना से बचना है, हाँ जी। अपने अपने कस्टमर्स को भी हाँ जी। बचाना है। वो अपनी फैमिलीज के भी बारे में सोच यस। रहे हैं कि अगर बाहर जाके काम कर रहे हैं, अगर वो यस। गलत तरीके से मतलब अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, फेस मास्क हाँ नहीं जी। पहन रहे हैं, ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, शील्ड नहीं पहन रहे हैं, तो उनकी फैमिलीज भी इन्फेक्ट होंगी और ऑब्वियसली बिजनेस तो होगा ही। हाँ पर यहाँ बराबर है मैडम। पर शिवा सर, आई ब्रिंग यू हियर कि आपकी 300 एम्प्लॉयज हैं,
उसमें से कितने लोग वापस चले गए हैं अपने गांव, और आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, या आपकी कम्युनिटी अभी भी आपने अपने एम्प्लॉइज को वहीं पर रखा हुआ है अपने मोटिवेशन के थ्रू? एक 60 60 70 जो फैमिलियां है, ये जी मेरे साथ में बहुत सालों से जुड़ा जुड़ा हुआ है। ये लोग पूरा मतलब फैमिली का साथ में यहाँ रह रहे हैं। ये लोग नहीं गए हैं। जो बैचलर्स थे वो लोग एक 40% तक नेटिव प्लेस चले गए हैं। और वैसा अभी दिक्कत नहीं होगा अपने को, क्योंकि अपने को चलाना भी 33% से चलाना है। और शायद गवर्नमेंट वीक में 4 टाइम अलाउ करेंगे, नहीं तो कोई कोई एरिया है ये मतलब एक दिन इधर बंद रहेगा, एक दिन वो एरिया में बंद रहेगा, ऐसा भी शायद चालू करेंगे। तो अपने को इतना दिक्कत नहीं होएगा। वैसा जो अपना साउथ इंडियन और ऑल ऑल कम्युनिटी, महाराष्ट्रियन, गुजराती, जो यूपी झारखंड से भी अपना पास बहुत सारे एम्प्लॉय है, ये बहुत अच्छे से एकदम हाइजेनिक हेल्दी सब अपने आप को मेंटेन करके फैमिली के साथ में रह रहे हैं। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो सर, जो एम्प्लॉयज जैसे वापस चले गए हैं, हाँ। ऐसा कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो वापस नहीं आएंगे। एक हर एक इंडस्ट्री एक शॉर्टेज देखेगी लेबर की, तो उससे आप कैसे डील करने की सोच रहे हैं अपने अ, सैलून्स में? नहीं मैम, बहुत सारे लोग बोले जैसे आपको मालूम पड़ेगा वैसे आप बताइए, हम लोग तुरंत आ जाएंगे करके, क्योंकि ये एक अपना मतलब एम्प्लॉय फैमिली की तरह जुड़े हैं। तो जी ये अपने को मतलब छोड़ने नहीं चाहते हैं, और काम से मोह रखते हैं। मतलब अपने आप को ये लोग मतलब यहाँ आके काम करना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ जो 40% गए हैं उसमें 35% जरूर आएंगे। जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तभी जैसे मतलब जरूर आएंगे, मैं ऐसा ये सोचता हूँ। तो सर, अभी हमने आप दोनों से बात करी कि वो खोलने पे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसमें आपने पीपीई किट्स और फेस मास्क, शील्ड्स के बारे में हमने बात करी। पर हाँ। मैं थोड़ा सा ऐसे स्टेप बैक करना चाहूंगी। सोमा शेखर जी ने थोड़ा सा इस पे टच किया फॉर बार्बर कम्युनिटी। बट सर, आप एक बिजनेस चला रहे हैं। आई वांट टू टेल ऑल आवर व्यूअर्स कि शिवा सर हैज 20 सैलॉन्स इन मुंबई, जो वो पिछले 25 साल से रन कर रहे हैं, थर्टी एंड टू ईयर 32 32 ईयर। ईयर्स से रन कर रहे हैं। तो सर, यहाँ पर मैं थोड़ा टच करना चाहती हूँ बिजनेस सेंस पे, कि हमने बंद कर दिया तो हमारा कोई रेवेन्यू तो नहीं आ रहा है, इनकमिंग नहीं है, बट हमारे खर्चे बहुत हैं। तो आपने अपने इस 2-3 महीने में कैसे इस चीज से डील करा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपना सलोन जो रेंट पे लिए हैं, जो सलोन जो जगह का ओनर्स है, इनको हम लोग मेल मेल किए, और पर्सनली मतलब इतना सालों से हम लोग चला रहा है। जो एकदम मंथ मंथ टाइम टू टाइम पे इनको पे होता था। एक वो लोग भी जो वो भी एक अपना फैमिली जैसे हुआ है। वो लोग भी एक्सेप्ट किया है। उनको भी पर्सनल फोन करके सर ऐसे ऐसा ऐसे ऐसा, जब से खुलेंगे डे वन से जैसे शॉप खुलेगा आपका रेंट चालू करेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग दे नहीं सकेंगे। इसमें जो 20 ब्रांच है तो 3 हमारा खुद का है। जो बाकी जो 17 जो रेंट का है, वो लोग इसमें भी 3-4 लोग थोड़ा सा पीतमदानी कर रहे हैं, तो वो भी मान जाएंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है पूरा परिस्थिति जो आया है पूरा वर्ल्ड के लिए आया है, मतलब सबके लिए मतलब आया है। वो लोग भी मान जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ऐसा। और एम्प्लॉय एम्प्लॉय को भी ऐसे मतलब आप मतलब हर हफ्ते हर 10 दिन में एक बार वो जो जूम ऐप पे फोन कर मतलब उनको लेके उनको भी कॉन्फ्रेंस बढ़ा के आप लोग को कुछ दिक्कत है तो बताइए। और इनको भी मैं जो सैलरी एक 20-20 दिन में डिवाइड करके दिया इनको। कमीशन भी वैसे मतलब दिया। वो भी बोलता है अच्छा सर आपने ये बहुत अच्छा किया, हम लोग एक साथ में नहीं दिए, एक साथ में देते तो अपने से खर्चा होता था, आप ये बहुत अच्छा किया, थैंक यू सर करके ऐसा ये है। सबका दुआएं साथ है, सबका अच्छा चल रहा है। मैं तो मतलब कोई कोई बोलता है अरे सोलून अभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब लोग नहीं आएंगे। अभी सोमशेखर जी भी बोलते थे एक कुछ दिन की बात है, ये लोग सब भूल जाएंगे। जैसे इसका वैक्सीन हो जाएगा तो सब नॉर्मल होएंगे, पब्लिक आएंगे। कोई कुछ किधर भी बंदा नहीं है, सब मतलब पास
दुनिया पास है, लोग आएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसा है। तो सुमा शेखर जी, आपकी अभी 2-3 महीने जैसे लॉकडाउन रहा है, जो हमारे छोटी सैलून्स हैं या बार्बर्स हैं, नाई हैं, हाँ जी। उन्होंने इसको कैसे हैंडल किया? अपनी सेविंग से किया या मतलब बहुत तकलीफ हुई होगी उनको, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए हमें। नहीं, बराबर मैडम, बहुत तकलीफ बोले तो बहुत ही तकलीफ में गया। पहले वीक में इतना किसको मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि रेगुलर चलता था, थोड़ा बहुत जी अनाज गिनत करते था। वो लोग को डेली कमाता है, डेली खाता है, परिवार बड़ा रहते हैं वो लोग का, सबका मोस्टली 90% आदमी लोग का कैसा है बोले मेरे को, जो कमाता है वो खाता है। रेशन एक हफ्ते तक रेशन ऑलमोस्ट रहता था, और गवर्नमेंट का सब रेशन मिलता है, वही सबसे थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन एक हफ्ते के बाद दो तकलीफ चालू हो गया, किसी को दवा लाने के लिए पैसा नहीं, किसी को दूसरे का चावल घर पे है लेकिन दूसरा कुछ घर पे नहीं है, यही सबसे प्रॉब्लम हो गया। लेकिन बोले में मैं बहुत खुशी पड़ता हूँ, हम लोग को जो संगठन, छोटा छोटा संगठन किया, ये भंडारी समाजा बोल के, सविता समाजा बोल के, तो वो संगठन का माध्यम से जो हो सकते है लोगों को किट देने का काम कर दिया। सब जगह पे अपना अपना जो एरिया है, अभी समझिए अपना उड़पी है, उड़पी डिस्टेंस में डिस्ट्रिक्ट में कितना सैलून तो है, ये गरीब लोग है, वो लोग के लिए अनाज देने का काम किया। दूसरे लोगों ने थोड़ा बाहर का लोग जो संगठन है वो लोग भी अनाज बांटने का काम किया। हम लोग खुद ही भी कोई बात करके बहुत तकलीफ है, दवा लेने के लिए पैसा नहीं, वो लोग को बैंक ट्रांसफर करके थोड़ा थोड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपस में हम लोग अपना हाथ बढ़ाया। इसलिए थोड़े से जीना जिंदगी चला। लेकिन बहुत तकलीफ हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट में हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद गए हफ्ते से, एक हफ्ते से हम लोग का ये 18 तारीख से, वो 30 तारीख से सैलून सब कर्नाटक में ओपन हो गया। तो अभी फिर भी क्या हो रहा है बोल के, उधर एक कोरोना आ गया, वो एरिया सील आउट हो जाता है, तो दुकान ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। ये अभी अभी चल रहा है, एक तालुक में, एक या हुबली में, एक वार्ड में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन टोटल मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आदमी का तकलीफ इतना है कि कमा के खाने का था, उसका जिंदगी बहुत बड़ा दिन, तकलीफ का दिन गया। लेकिन ये आपका माध्यम से एक गवर्नमेंट को मैं ये देना चाहता हूँ कि शाबाशीगिरी देना चाहता हूँ अपना कर्नाटक गवर्नमेंट को। वो अपना जो बार्बर कम्युनिटी को 5,000 का जो परिहार देने का काम किया, लेकिन अभी मिला नहीं। उसके लिए तो रूल एंड रेगुलेशन जो बनाएगा उसके हिसाब से एप्लीकेशन डालेगा, वो डायरेक्ट बेनिफिट का स्कीम का वजह से मिलने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट तो पहले बार जिंदगी में ये कम्युनिटी हाई बोल के वो लोग को 5,000 रुपए देने का जो प्रॉमिस किया मैडम। इसलिए आपका माध्यम से जो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, सरकार भी जो करेगा, फिर अनाज भी देने का, लोगों को 2 महीने का चावल फ्री, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट भी 2-2, 3-3 महीने का जो बीपीएल कार्ड है और एपीएल कार्ड भी है, किसका पास रेशन कार्ड है नहीं है, फिर भी उसको चावल लेने को गया तो उसको दाल चावल तो मिला मैडम। एपीएल कार्ड वाले को थोड़ा पैसा देना पड़ा, लेकिन बीपीएल कार्ड वाले को फ्री मिला। हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे जो लोगों की बड़ी हैंड टू माउथ लिविंग है, कि जो कमाया वही खाया, हाँ उनके जी। लिए उनकी जो कम्युनिटीज ने आके जो उनकी मदद करी है, उससे हाँ जी। एक एक सहारा मिला है, एक कुशन मिला है कि वो इस हाँ जी। टाइम को सस्टेन कर पाए। हाँ तो जी। अब एक्चुअली में सुमा शेखर जी ने बताया कि जैसे सरकार ने ये जो 5,000 रुपए बताए हैं, तो वहां पर शिवा सर, आई वांट टू ब्रिंग यू इन कि सरकार ने बहुत ज्यादा अपने उसमें बताया कि वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या मैडम एक बिजनेसेस। बात जोड़ना चाहता हूँ, मैडम मैडम एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मैडम एक बात जोड़ना चाहता हूँ। ये सरकार कर्नाटक सरकार ने किया, भारत देश का पूरा सरकार ने नहीं किया, पूरा स्टेट में नहीं हुआ। जी जी। तो मेरा रिक्वेस्ट तो रहेगा आपका माध्यम से, पूरा हम्म, देश में हो ये बात। तो मैं सर आपसे शिवा सर ये पूछना चाहती हूँ कि इस आपको लगता है सरकार ने कुछ ऐसा करा है जो आपके बिजनेसेस को हेल्प कर पाए इस टाइम में अपने आप को सस्टेन करने के लिए? कोई ऐसा पैकेज है, या आप कुछ जानते हैं जो आप अवेल करेंगे, कोई ऐसी फैसिलिटी सरकार के थ्रू? 100% मैडम। ये गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से भी होना चाहिए। जो अपना जो बार्बर कम्युनिटी, ये इतना साउंड नहीं है, मतलब वो वॉइस नहीं है, मतलब हर 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 कोई अपना अपना बिजनेस कर रहा है, हर कोई अपना अपना छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक काम कर रहा है, लेकिन एक एक यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी रहते तो बहुत अच्छा अच्छा होता था ये टाइम 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 में, मतलब हाँ,
मतलब गवर्नमेंट भी सोचता था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोचता था, स्टेट गवर्नमेंट भी सोचता था इनके लिए कुछ करना चाहिए। हम हमारे देखिए ये पूरा करोड़ों लोग महाराष्ट्र में, मैं सोचता हूँ करोड़ों लोग हैं। मतलब जैसे छोटे छोटे लोग भी, छोटे छोटे सैलून, मतलब एक चेयर का सैलून, मतलब जी चेयर का सैलून रख के, 2 चेयर का, 3 चेयर का, जो ब्यूटिशियन भी छोटे छोटे शॉप करके बोलते हैं। अफकोर्स उनकी भी तकलीफ तो है ही है, क्योंकि ये बिना सोच के आया हुआ प्रॉब्लम है, सब तकलीफ है। मतलब इसको गवर्नमेंट, हम लोग भी एकता होना चाहिए, एक आवाज उठना चाहिए, और उठा के मतलब गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करना चाहिए इसके लिए। सर अभी हम थोड़ा सा वापस आते हैं टुवर्ड्स जो अब खुलने के बाद जो बिजनेस हमारा स्टार्ट होगा, उसमें आपको लगता है कि कुछ जैसे जितनी फ्रीक्वेंसी से लोग पहले आते थे, मेरी सर से पहले भी बात हो रही थी, जैसे देयर आर पीपल जो हर रोज हेयर वॉश के लिए आ रहे हैं या मसाज के लिए आ रहे हैं, वो अब अपना फ्रीक्वेंसी कम करके सोचेंगे कि हम महीने में एक ही बार ही आएं और अपना जो मेन काम है जैसे हेयर कट या वो करवा के और हम चले जाएं। तो आपको लगता है शिवा सर कि बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट होगा लोगों के, देखिए क्योंकि ऐसा, लोगों को डर रहेगा सैलून में आने से? ऐसा बड़े बड़े सैलून में अभी अपना ही सैलून में एक, इसमें कम से कम 6-7 कैबिन है। कैबिन से तो फिर जी उसमें अकेले में बैठ के उनको चाहे वो हेड मसाज कराइए या फेशियल करवाइए, जो जो भी बॉडी वैक्सिंग हो, मतलब सब कुछ सुविधा है एक कैबिन में अलग सेपरेट, तो उनको भी एकदम कंफर्टेबल फील होएगा। जी वैसा भी है। हाँ, जिधर मतलब ओपन ओपन एरिया है उधर थोड़ा दिक्कत होगा। उसमें भी हम लोग सोचते हैं जो कटन, जो एक दूसरे को मतलब देखे नहीं, जी तो एक दूसरे को मतलब वो ये नहीं हुए, मतलब उनको पॉजिटिव फील करने के लिए हम लोग वो भी सोच रहे, थोड़ा सा उनको प्राइवेसी लगे। वैसे ज्यादा करके कैबिन है, जिधर नहीं है थोड़ा सा हम लोग उसको प्राइवेसी देने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा। और बिजनेस मैं तो जैसा बताया, जैसा इसका वैक्सीन आएगा और तो उसका बाद में इतना ये नहीं होएगा। हाँ, थोड़ा बहुत लोग सोचते हैं जो अबाव 60, जो चिल्ड्रन, जो पहले जैसा माहौल नहीं है, ये अभी उनको तो निकलना भी नहीं चाहिए। जो यंग एज रहेगा बिजनेस में थोड़ा एक 20% 25% तो फर्क आएगा। जो जब तक वैक्स नहीं आएगा तब तक थोड़ा 20-25% फर्क आएगा। सोमाश्रिका जी, व्हाट डू यू थिंक जो छोटे सैलॉन्स हैं जिनमें सेटअप इतना अच्छा नहीं है या इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे वो एक सोशल डिस्टेंस और वो सैलॉन में अलग अलग चीजें रखने के लिए, तो वो कैसे इस चीज से डील करेंगे? और उनका भी शायद से बिजनेस कम होगा तो उनके लिए ये और भी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। नहीं, सही मैडम, ये तो कोरोना का वजह से सब लोग का पास में एक डर तो बैठ गया है कि गए तो मेरे को आ नहीं ऐसा हो ही सकते। लेकिन बिजनेस का सेंस 30% बिजनेस आ रहा है मैडम, अभी 70% बिजनेस लॉस में है आज ओके का एट प्रेजेंट है। तो मैं अभी अभी बहुत लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि हेल्थ के बारे में बात करता हूँ, संगठन के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में पूछने के लिए हम लोग को कनेक्ट होता है। अभी मालूम पड़ते कि एक हफ्ते हो गया दुकान सब ओपन होती उड़पी में, 30% बिजनेस खाली हो रहा है। वो भी कभी कभी वो भी नहीं है ऐसा बोल रहे हैं कोई कोई। ये डर है लोगों के बीच में, ये डर है कैसे करने का। लेकिन जो सैलून में जो आते हैं, बहुत छोटा सैलून है, 3 चेयर का सैलून है, उधर एक चेयर सेपरेट कर दिया, सिर्फ 2 चेयर में बैठने का जगह बनाया, बीच में डिस्टेंस मेंटेन किया। लेकिन बैठने का, अंदर बैठने का रहेगा तो कोई एक ही 10 फीट का एक बैठने का सिटिंग रहेगा, उसमें सिर्फ 2 आदमी को बैठने का हिसाब करेंगे, बाहर का आदमी बाहर रहेंगे। जो अंदर आने का टाइम मैं पहले बता दिया मैडम, आपको सैनिटाइजर करके अंदर कस्टमर को लेते हैं, पेपर में वो पढ़ने के लिए नहीं रखेगा, कुछ नहीं, ये अपॉइंटमेंट से आने के लिए। जो हमारा कस्टमर सब मोस्ट ऑलमोस्ट कैसा रहता है बोल के पहचान रहता है, और रेगुलर कस्टमर रहता है, तो मोस्टली फोन करके वो अपना टाइम देके आने का काम कर रहे हैं सब लोगों। वो आपके को भी अच्छा हो गया है उसमें। नहीं तो क्या होता है, एकदम आके लाइन खड़ा हो जाता था, बहुत तो काम करने में तकलीफ। बहुत छोटा छोटा दुकान निचले इसमें सिरम जी का जैसे बड़ा दुकान नहीं रहता है, छोटा छोटा जगह रहता है, इसलिए बैठने का वो उठने का बहुत तकलीफ होता था। लेकिन अभी वो रश नहीं है। लेकिन बिजनेस के हिसाब से बहुत टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। शिवराम जी ने बोल रहा है वो सही बात है, इसको वैक्सीनेशन मिलेगा, आएगा, उसका बाद बिजनेस ठीक हो जाएगा, लोग बराबर हो जाएगा। तब तक थोड़ा जिंदगी में थोड़ा तकलीफ, फाइनेंशियल तकलीफ है ही,
तो इसलिए मैं पता है गवर्नमेंट से सहायता इसलिए मांगा कि सब देश का पूरा स्टेट में, ये कर्नाटक में जो किया वो हिसाब से सब लोग, सब गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो मैं अभी जितनी हमारी अभी तक बातचीत हुई है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए उसको 2-3 पॉइंट्स में समराइज करने की कोशिश करती हूँ संक्षेप में। कि पहला, हाँ, हमारी जो बाबा कम्युनिटी है वो इम्पैक्ट हुई है, बट जो कम्युनिटी है और संगठन है उन लोगों ने साथ में मिलके कोशिश करी है कि हमारी सबको अनाज मिले, खाना मिले खाने को। और वो अपना कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक मेजर लिया है कि उन्होंने बोला है कि वो 5,000 रुपए देंगे, तो उससे भी एक सहारा मिलेगा सब लोगों को। दूसरा, चाहे वो बड़ा सैलून हो चाहे वो छोटा सैलून हो, उन सब ने पूरा एफर्ट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग या ग्लव्स पहनना, पीपी किट्स पहनना, सैनिटाइजर्स यूज करना, ताकि उनके कस्टमर्स सेफ फील करें और उनकी फैमिलीज भी बैक होम बहुत सेफ फील करें। तो उसकी पूरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। सैलून्स को पता है कि ये प्रॉब्लम है और हमें इससे डील करना है और हमें अपने बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करना है, एक्चुअली कस्टमर्स को भी ये सर्विस चाहिए। तो उसकी जितने मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं आज की डेट में। और एक हम कह सकते हैं कि जब सैलून खुलेगा तो शायद सिर्फ 20-25% हमारे बिजनेस कम होगा, क्योंकि लोग इतनी जल्दी और फ्रीक्वेंटली काम कराने अभी स्टार्टिंग में तो नहीं आएंगे। होपफुली जब हमारे पास एक दवाई आ जाएगी या वैक्सीन आ जाएगी, जब हमारे साइंटिस्ट कुछ डिस्कवर कर लेंगे, तो फिर थोड़ा सहारा मिल जाएगा कि इस बीमारी का भी कोई इलाज है। जैसे हम बुखार में कोई पैरासीटामोल लेते हैं, तो होपफुली अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है, कोविड-19 हुआ है, तो आप ये दवाई ले सकते हैं। तो आई गेस तब तक थोड़ा सा बिजनेसेस में चीज़ों में एक टेंशन रहेगा और एक डर बैठा रहेगा लोगों में, तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा समय लगेगा। मूविंग ऑन, ये मैं थोड़ा सा एक बीच में आई थॉट कि थोड़ा समराइज करना चाहिए। तो सर, नेक्स्ट मुझे पूछना है कि अबाउट जो हमारा सैलून बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एक वो वन मैन आर्मी की तरह भी वर्क करता है कि लोग घर में आके काम कर देते हैं, स्पेशली जो लेडीज होती हैं उनकी हेल्प के लिए। एक छोटी सी कॉलोनी है, उसमें किसी ने एक हाई चेयर लगा ली अपने ही घर में एक कमरे में, एंड वो अपना प्रोडक्ट्स मंगवा के काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे बिजनेसेस सरवाइव कर पाएंगे? मतलब लोग कंफर्टेबल होंगे या वो ज्यादा बड़े सैलून्स की तरफ भागेंगे? आई थिंक हम शिवाजी से स्टार्ट करेंगे, देन सोमशेखर जी कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस। इसमें जिसका पास जो फेथ है, जो जो हाइजेनिक जो रखते हैं, जो सालों से देख के आए हैं, मतलब जो ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट बैठता है, हाँ ये इनका अच्छा है, इनका मेंटेन जो हाइजीन सब पहले से ध्यान रखा है और वो अभी भी मतलब हाइजीन से रखेंगे करके जो फेथ रहता है वो इम्पोर्टेंट है। और जो घर पे जो जाने की बात है, अभी थोड़ा सोचेंगे, मतलब वो पहले जैसा एकदम अरे आओ आओ ऐसा नहीं बुलाएंगे, मतलब वो कहाँ से हो, कैसा क्या है, वो कहाँ पूरा डिटेल निकालेंगे, कहाँ रहते थे, कौन सा एरिया में रहते हैं। वो अभी जूम ऐप का, जैसे जूम ऐप से पूरा मालूम पड़ता है पूरा डिटेल। हम भी जूम ऐप किया हूँ और मेरा एम्प्लॉय भी किया है, तो सब पूरा उसमें भी मालूम पड़ता है कौन सा बिल्डिंग में आया है, कौन सा चाल में आया है, क्या है। मतलब अवेयरनेस जो है वो बढ़ गया है। पहले जैसे मतलब फ्रीडम से जो काम नहीं कर सकता है, जो एक शक की नजरिया से देखेंगे, जो थोड़ा हाइजेनिक जिसका कम है उसमें लोग ज्यादा सोच समझ के जाएंगे, ऐसा। सोमशेखर जी, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? नहीं मैडम, बराबर है, शिवराम जी बोल रहे हैं वो बराबर है, लेकिन हम लोग ये ऑलरेडी इधर सबको इंस्ट्रक्शन दे के रखा है। जो भी कस्टमर आएगा मैडम, उसको पहले प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसको सैनिटाइजर करने का, उसका जो सहूलत, उसका दिल में कभी नहीं लगना चाहिए मैं सैलून में गया मेरे को कुछ बीमारी आ जाएगा क्या, जो शक नहीं आना चाहिए। इसलिए जो मेजर लेना चाहिए वो छोटा दुकान है तो भी लेना के लिए पूरा हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे रखा है और पालन भी कर रहा है। और मैं आपको बताया ग्लव्स, फेस का ये अपना मास्क, इसके वैश,
सैनिटाइजर करने का, जो हाथ में धोने का, एक कस्टमर होने का बाद उसको सब देने का, और सब वॉश करके वो फिर यूज करने का, यही सबसे। कपड़ा भी डिस्पोजल कपड़ा यूज करना चालू कर दिया। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट शिवराम जो बोला ऐसा है कि जो कस्टमर आएगा उसका कंप्लीट फोन नंबर, एड्रेस हम लोग रिकॉर्ड भी करने का चालू कर दिया मैडम। क्योंकि वो जो कस्टमर कुछ आ गए, कुछ हो गए, उसको ट्रैक करने में सरकार को, हेल्थ डिपार्टमेंट को तकलीफ नहीं आवे, इसलिए वो भी हम लोग ने चालू कर दिया कि क्योंकि कोई भी तकलीफ नहीं आवे। लेकिन एक बात इधर बहुत अफसोस से बताना चाहता हूँ मैडम आपका थ्रू से, तो आजकल क्या होता है, किधर भी कोरोना आएगा, टीवी मीडिया में जो आएगा वो सेलोन से कोरोना, ये हेडलाइन चलाता है। तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। एक्चुअली सैलून वाला किधर भी नहीं जाते मैडम, वो सुबह घर से उठ के आएगा, अपना सैलून पे आएगा। अगर सैलून है तो अभी ओपन हुआ है, तो अपना इधर का बात करता हूँ, बाकी जगह पे अभी भी ओपन नहीं हुआ, कई जगह पे ओपन हुआ, कई जगह पे नहीं हुआ, ओपन हुआ। लेकिन अपना इधर ओपन हुआ। लेकिन बहुत दुख के साथ बताता हूँ, कल परसों एक टीवी न्यूज में ऐसा चला है कि सैलून में गया, उसको सैलून ने कोरोना दिया। तो बहुत मुश्किल के होता है लाख में, बाद में उसको फोन करके हम लोग ने बताया उसको, मीडिया वाले को, आप ऐसा नहीं कीजिए कि कस्टमर किधर से आते हैं हम लोग को ऐसा मालूम पड़े, अपना को पास कोई मानदंड नहीं है। कोई गवर्नमेंट भी करते क्या, पहले वो आया तो उसका तो टेम्परेचर चेक करते हैं। और टेम्परेचर आजकल का कोरोना ऐसा हो गया कि कोई भी लक्षण नहीं है, गवर्नमेंट अपने इंस्ट्रक्शन दिया है, खांसी रहेगा तो, बुखार रहेगा तो उसको आप काम नहीं करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन है ये अपने को। लेकिन अपने को कैसा मालूम पड़ेगा मैडम, आज कोरोना है तो कैसा मालूम ही नहीं पड़ेगा कस्टमर को रही तो। इसलिए मैं कस्टमर से ये विनंती करना चाहता हूँ, सैलून का वजह से, सैलून वाले के जो वजह से आपको कोरोना 100% नहीं आएगा, उसका हम गारंटी देंगे। क्योंकि हम लोग जिंदा रहेगा तो आपको हम करेंगे काम। पहले हमारा संसार को भी देखने का है, हमारा बाल बच्चे है, इसलिए हम लोगों पहले मेजर हमारा मास्क, अपना ग्लव्स, अपना सैनिटाइजर, हाथ वॉश करने का, कपड़ा चेंज करने का, ये सब मेजर हम लोगों ने किया हुआ है। इसलिए कस्टमर कोई डरने की जरूरत नहीं है। कस्टमर ये बिहेव करे कि अपन किधर जाके आएगा, चले में आने से पहले वो भी अच्छे तरह से सोच समझ के अपना क्लीन करके आए। लेकिन हम क्या होता इसमें है। हाँ, हम इसमें ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी लोगों में एक डर बैठा हुआ है, तो वो किसी पब्लिक प्लेस पे आने से ऑलरेडी थोड़ा डर रहे हैं। हाँ जी, तो एज रिस्पॉन्सिबली जब हम कोई स्टोरी को रिपोर्ट कर रहे हैं या कुछ हाँ भी जी, है, तो उसको बेटर पहचाने की क्या वो हाँ जी, एक्चुअली में कोई सैलून की गलती है, या जो वो कस्टमर आया है वो कहीं बाहर से आया है। क्योंकि ये सब पब्लिक प्लेसेस हैं, तो हमें नहीं पता कि वो कस्टमर लेकर आया है कोई और है, वो है। एम्प्लॉयज कहीं से आ रहे हैं। तो उसमें जो एक वो जो ट्रेसिंग है वो बेटर समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टोरी या एक रिपोर्ट से ऑलमोस्ट सबका बिजनेस इम्पैक्ट होता है। क्योंकि वो जैसे वो डर बैठता है, आई थिंक आज के सही बात। टाइम में कोरोना के बाद लोगों के डर से डील करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स जो हमारे सामने आएंगी। सही पर बात है मैडम। अब मुझे एक और एक डिफरेंट डायरेक्शन में मैं कॉन्वर्जेशन को लेकर जाऊंगी, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट या सैलून। और शिवा सर, पहले तो आप ये बताइए कि क्या हमारी देश में इनफ हेयर स्टाइलिस्ट हैं, या हमें औरों की जरूरत है, या ऑलरेडी इतने सारे हैं कि अब औरों के लिए जगह कम पड़ रही है, नए ट्रेनर्स, नए लोगों के लिए। नहीं मैम, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत ही लोग चाहिए, चाहे हेयर स्टाइलिस्ट हो, चाहे ब्यूटिशियन हो। क्योंकि बहुत अच्छा फ्लो में जा रहा था, तो ये अभी कोरोना की वजह से थोड़ा ब्रेक हुआ है। आगे चल के मेरे थोड़ा 1 साल तक एकेडमी तो नहीं चला सकते, मेरा भी खुद का एकेडमी है। ये 1 साल 1.5 साल के लिए एकेडमी नहीं चलाएंगे हम लोग, क्योंकि उसमें ज्यादा क्राउड आता है। अपना गवर्नमेंट का ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हम लोग मतलब सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अभी फिलहाल 1.5 साल तक नहीं, मतलब ये जो दवा आने तक हम लोग ये सिखाएंगे नहीं। लेकिन स्टाइलिस्ट का, ब्यूटिशियन का बहुत जरूरत है। बहुत मतलब ये इंडस्ट्री मतलब बहुत आगे बढ़ने वाला इंडस्ट्री, मतलब लोगों को पूरा जैसा मुंबई कभी रुका नहीं है, मुंबई चलते मुंबई है। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, पॉजिटिवली सोचता हूँ। मतलब ये बहुत नीड है हर कोई को, मतलब डे बाय टाइमिंग, मतलब पूरा खुलने के बाद में। अभी फिलहाल सब मजबूरी में घर पे बैठे हैं, मजबूरी में एकदम, मतलब थोड़ा सेंस का वजह से ये सब सब ठीक होएगा। तो मतलब
तो सर हम ये कह सकते, जैसे अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं इकोनॉमी में, नौकरियां गई हैं सारे लेवल्स पे, चाहे वो एक मैनेजर लेवल पे हो, चाहे वो एक लेबर लेवल पे हो, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। तो क्या अम, आपको लगता है कि एक हेयर स्टाइलिंग एक ऐसा हुनर है, एक स्किल है जो लोग डेवलप कर सकते हैं और एक बिजनेस रन कर सकते हैं, या उनको जॉब मिल सकती है? जैसे लोग कह रहे हैं री स्किल करिए, दोबारा अपने आप को स्किल करिए, नई स्किल्स लेके आइए, क्या हम कह सकते हैं हेयर स्टाइलिंग या सैलॉन्स, ब्यूटिशियन एक ऐसा स्किल है जो लोग कर सकते हैं और उसमें आपको जॉब्स मिलेंगी इंडस्ट्री में? मैडम देखिए, ये ऐसा इंडस्ट्री है, मैं ये काम 1977 में सीखा हूँ। 77 से ये मैं काम करते 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 1988 में मेरा खुद का ब्रांच चालू किया हूँ। मैं मतलब 4-5 जगह में मैं काम भी किया हूँ, मतलब 8-10 साल तक काम किया हूँ। ये एक मैं समझता हूँ ये ऐसा इंडस्ट्री है, अगर वो दिल से 100% ये काम को देता है, 10 घंटा 12 घंटा जो गाड़ी बिगड़ दे के जो गाड़ी मतलब काम करता है, उस उनको वो फैमिली चलाने का बिंदास वो फैमिली चला सकेंगे। मतलब उनका जो खर्चा खाली संभाल के वो रख के, तो मैं मेरा एम्प्लॉय भी बोलता हूँ, देखो 100 रुपए कमाते हैं तो 70 रुपए बचाओ, 1000 रुपए कमाता है तो अभी मतलब बहुत सारे लोगों को याद आता रहेगा जरूर, क्योंकि क्योंकि मैं ऐसा ऐसे ऐसे वो लेवल पे आया हूँ, इसके लिए मैं वो उसका वैल्यू समझता हूँ। तो वही मैं ये कहना चाहूंगा, ये फील्ड में कभी भी कोई भी पूरा मतलब एकदम विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, कभी कोई भूखा नहीं मर सकता है। उनका फैमिली 2 फैमिली 3 फैमिली जितना चलाने का वो अगर 100% काम पे वो 100% दिया तो वो जरूर फैमिली चला पाएगा। एंड सोमा शेखर जी, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि ये एक स्किल सेट है जो और लोग ले सकते हैं, और शायद से जिनकी नौकरियां गई हैं अपने आप को एक डिफरेंट फील्ड में ट्रेन कर सकते हैं और कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में? 100% कर सकते हैं मैडम। देखिए आज का जमाना ऐसा हो गया है कि प्रोफेशन कौन सा है नहीं है, पैसा किधर से मिलता है और कितना मिलता है। ये बिजनेस में पैसा बहुत है। और शिवराम जी बोला, ये एक अच्छा बात है। शिवराम जी को बहुत सालों से मैं जानता हूँ, 79 से मैं जानता हूँ। ये जो हम लोग ये बताने के लिए कोई संकोच नहीं करूंगा मैं। हमारा ये समाज का एक गौरव के आदमी है मैडम। क्यों लाखों लाखों में एक आदमी ऐसा पैदा हो सकता है, लेकिन आदमी चाहेगा नहीं मैं कोई भी प्रोफेशन सीखूंगा और अच्छे से करूंगा, फिर लोग उसको प्यार से करेंगे। लोग ग्राहकों को अच्छे से सेवा करेंगे, ऐसा भावना से काम करेंगे। शिवराम जी बोले 100% कर सकते हैं। और तो ट्रेनिंग देने का जो स्किल जो है, जो देने वाले बहुत है लेकिन मैडम सीखने वाले बहुत कम है इसमें। और मैं पहले आपको बता दिया था कि हमारा समाज में जो जो ये जो ये बार्बर का काम जो करते हैं हम लोग का जो कम्युनिटी बोल के है, लेकिन इसमें जो युवा पीढ़ी नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आपको पहले बताया जो सोशल मीडिया हम लोग को जो सामाजिक व्यवस्था जो है, इसलिए लोग डरते हैं कि मैं उसमें गए तो क्यों। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, नॉर्थ में मेरे कितना मालूम नहीं है कि हाई बोलता है, लेकिन कितना है उसका परसेंटेज मालूम नहीं। लेकिन साउथ में तो बहुत उसका तकलीफ प्रॉब्लम है। बेंगलोर के जैसे में अगर मैं बार बार बोले तो घर भी नहीं मिले मैडम, और दुकान भी नहीं मिलेगा बनने के लिए। ऐसा प्रॉब्लम आज भी है। इतना 21 सेंचुरी में जा रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं बताता हूँ कि लोग ये सब सोचता है, देखता है, लेकिन है पक्का ट्रेनिंग अगर मिलेगा। ट्रेनिंग बहुत इंस्टीट्यूट है मैडम, इंस्टीट्यूट है, सिखाने वाले बहुत है। बहुत लोग शिवराम जैसे बहुत लोग है, लेकिन वो लोग का जो गाइडेंस वो लोग का ट्रेनिंग लेके अगर इसमें बिजनेस करेंगे, वो काम सीखने के बाद बिजनेस करेंगे, वो सक्सेस होएगा इसमें। लेकिन मैं 2-4 आदमी रख के पैसा अभी कर रहे हैं, सब बहुत ऐसा है, बहुत लोग है पैसा डाल के अपना लोगों को काम पे रख के पैसा बनाया। लेकिन ये कोरोना का बाद वो ऐसा बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। शिवराम जी के जैसे जो काम करेगा, मेहनत करेगा, वो खुद उधर खड़ा रहेगा, वो प्यार से करेगा, कस्टमर से बात करेगा, वो कस्टमर को कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं शिवराम जी मैं पहले बार देख रहे हैं, वो इतना उसके लिए प्यार करते हैं, वो अपना इसमें काम के लिए वो सेवा भाव से काम करता है। पैसे के लिए नहीं काम, पैसा तो चाहिए आदमी को तो, लेकिन वो सेवा भाव से करता है। तो वो होएगा तो पक्का ये बिजनेस बहुत सक्सेस होएगा, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत है मेरा। So, और बोलने का ये है तो पूरा बाहर का लोग ही जास्ती हमारे इंडस्ट्री में है, so यानी sir, दूसरा जात का। there are some आगे
ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हाँ आए जी। हैं। तो क्वेश्चन है कि ऐसी कोई सर्विसेज है जो आप नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उसमें हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज या रिस्क ज्यादा रहेगा, कि कुछ ऐसी सर्विसेज है जो नहीं लेनी चाहिए इस टाइम पे क्योंकि वो आपको आपके हेल्थ से मतलब वो मैटर करता है। तो शिवा सर, एनीथिंग आपको लगता है कोई ऐसी सर्विस है सैलून में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए सबको? तो अभी फिलहाल वैसा मेरा सिर्फ 2 जगह में जो बॉडी मसाज होता है, वो भी मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल। मैं सोचता हूँ कुछ टाइम के लिए, जो दवा आने तक, ये जो बॉडी मसाज जो है, मतलब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बॉडी मसाज नहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करने वाला का भी दम घुटता है, करने वाला का भी दम घुटता है बहुत ज्यादा। वो उनको ब्रीदिंग का ये बहुत ज्यादा रहता है, मतलब। और क्यों, मतलब वो भी मतलब खांसने खांसने का, थोड़ा लंबे श्वास छोड़ने का, वो थोड़ा दिन अवॉइड करना चाहिए, ऐसा ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी कुछ ऐसा सर्विस कुछ नहीं है, मतलब बिंदास करा सकते। जो जो भी फेस मसाज लेंगे या स्टीम लेंगे, माथे में स्टीम लेंगे, ये मैं सुना हूँ स्टीम गर्म बाप बहुत अच्छा रहता है, ये नहीं ऐसा। सुमा शेखर जी, आपको कुछ इस पे कोई ऐसी सर्विसेज है जो अवॉइड करनी चाहिए इस टाइम पे? नहीं, सही बात है। तो मालिश करने ये सब अवॉइड करना चाहिए मैडम, मेरे हिसाब से भी। क्योंकि जो बिजनेस का लिए मैं बात करना होगा, जो अपना जो बार्बर, ये हेयर कटिंग, जो ब्यूटिशियन, हेयर पार्लर है, जो सैलून है, सेम टू डेंटिस्ट है, डॉक्टर, ये दो बहुत खतरा, हम दो भी करते हैं मैडम। ये प्रोफेशनली है, मैं बोलता हूँ, ये बहुत खतरा का काम है। क्योंकि एक आदमी आने वाले का, ग्राहक का बात में बहुत नजदीक से श्वास लेते हो, भले मास्क डाला हुआ कुछ भी हो, लेकिन ये डर तो है ही है। इसलिए मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि लोगों को मालिश का जैसे जो, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और अपना लोगों को भी हम पहले भूल के रखा है कि अगर मसाज गिसाज आएगा तो आप लोग अवॉइड करो, जब जी, तक कोरोना होने जाने तक। तो उसको वैक्सीनेशन जो आएगा तब तक के लिए थोड़ा अवॉइड करना जरूरी है। हम जैसे अब सर्विसेज लिमिट हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी, मतलब आपने एक्चुअली एक ही सजेस्ट करिए, बट अगर अगर डिमांड कम हो जाए, एक तो सप्लाई साइड हो गया और एक डिमांड की साइड है, सर्विसेज कम एंड मे बी लोग प्रोडक्ट्स पे कम स्पेंड करेंगे। सो शिवा सर, यू हैव अ होल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, एवरीथिंग। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे कि क्या उसमें वो प्रोडक्ट की बाइंग में भी बहुत कम होगा, वहां पर भी बिजनेस इम्पैक्ट करेगा? नहीं मैम, प्रोडक्ट का इसमें कम नहीं होगा। जो लोग यूज टू हुआ है वो तो उनका चालू ही रहेगा, घर पे लेके जाके यूज करेंगे ये, उसमें प्रोडक्ट में कुछ कमियां नहीं आ सकता है। तो उल्टा ज्यादा होएगा, मतलब ऐसे घर किधर पे भी जाके। बाहर जाके आएंगे, मतलब कुछ भी अभी बाल पे भी गिरेगा तो उनको भी 2 2 बार, अरे यार, अरे यार, मैं और क्लीन होना चाहिए, मैं और क्लीन होना चाहिए। जैसा सैनिटाइजर हाथ पे लगाते हैं, वो पहले दिन में एक बार लगाते हैं, स्नान करते थे, अभी 2 बार 3 बार भी, क्योंकि अपने आप को बहुत डीप क्लीन करने के लिए सोच रहा है ऐसा। तो एक सवाल आया कि शायद से जो अब हमारा जो खर्चा है सैलून चलाने का वो कम हो जाएगा क्योंकि हम जितने प्रोडक्ट्स यूज करेंगे वो कम हो जाएंगे क्योंकि सर्विसेज कम हो जाएंगी। ऐसा कुछ है या प्रोडक्ट्स तो आपको उतने ही लेने पड़ते हैं जितने हैं? नहीं, प्रोडक्ट नहीं, हम लोग को बाकी जैसा, अभी कोई कस्टमर आने के टाइम में, मेरा कोई कोई जगह में इतना स्पेस है, मैं चाहे मेरा एम्प्लॉय का हो चाहे कस्टमर का हो, उनको अपन अंदर आते उनको स्लीपर दे देंगे, ताकि चप्पल से भी अंदर कुछ आवे नहीं, क्योंकि वो लोग कहाँ कहाँ जाके कैसा कैसा आता है करके नहीं मालूम पड़ता है। मैं सोचता हूँ उनको चप्पल भी प्रोवाइड करके वो यूज एंड थ्रू वाला रखना चाहिए, हमारे एम्प्लॉय को और अपना कस्टमर को। मैं तो इतना सोचता हूँ, मतलब दिन भर अभी अरे क्या करना है क्या करना है। देखिए अपना हर हर एम्प्लॉय को थर्मामीटर से टेस्ट करेंगे, अगर उनको खांसी है बुखार है तो उनको अलाउ नहीं करेंगे, उनको 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो उनको बोला हूँ मैं, देखो अगर ऐसा सा है, ऐसा ऐसा रूल बनाया है, आप लोग को अगर प्लीज अब पहले से मेंशन करो, आप लोग वहां तक आके फिर आप हम रिटर्न देंगे, ऐसा मत करो। मतलब इतना हम अपना एम्प्लॉय का इतना ध्यान रखते हैं, उनका हर
मतलब कहाँ रहता है, उनका नेक्स्ट डोर में कौन रहता है, क्या है, पूरा वो सिस्टम वाइज, एकदम सिस्टम वाइज मतलब करेंगे। सर, मोहम्मद इलियास इज आस्किंग कि क्या शिवा सर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल रहेंगे, और किस उस पे हम खरीद सकते हैं चैनल पे? नहीं मैम, ब्यूटी प्रोडक्ट है ये, सिर्फ शिवास के लिए बना हुआ है, ये अपना इंटरनल प्रोडक्ट है जो अच्छा। लोगों लोगों को एक बार आके उनको अच्छा लगा तो बार बार अपना पास ही आना चाहिए, वो हिसाब से हम उसको सेल नहीं करेंगे। वो अपना शिवास का ही प्रोडक्ट रहेगा, उसको सेल नहीं करेंगे। सिर्फ फिर शैम्पू और सर, कंडीशनर सिर्फ सेल जी, करेंगे। हाँ जी। आई थिंक एक भारती जी ने एक सवाल पूछा था कि कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हमें घर पे करनी चाहिए, है पूरा वो सिस्टम वाइज, एकदम सिस्टम वाइज मतलब सेल करेंगे। कि कोई घर पे कोई ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा सैलून जाना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो कुछ सजेशंस उस साइड पे। घर पे अभी आजकल जो यूट्यूब में देखे बहुत सारे चीज तो करते ही है। और जैसे ऑयल ऑयल मसाज है, फेस मास्क है, और ये सब घर पे कर सकता कलर है, कलरिंग इजी भी है। करते हैं आजकल। हाँ और ऐसा। ऐसी कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए घर पे, और उसको वो आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें तो बिल्कुल मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, और इसके लिए वेट करिए कि आप एक सैलून जाए। ऐसी कुछ स्पेशल चीजें जो सैलून सर्विसेज और प्रोफेशनल से ही करवानी चाहिए। देखिए अभी अभी भी कोई कोई तो एक 5-10% तो घर पे एक्सपेंस तो लिए ही ये लोग, तो उनको भी ऐसा लगता है अरे यार सलून कभी खुलेगा, मतलब जो हेयर स्टाइलिस्ट जो करने वाला काम वो हेयर स्टाइलिस्ट ही करेगा, जो ब्यूटिशियन जो काम करने वाला वो ब्यूटिशियन ही करेंगे, तो कितना भी खुद करेंगे तो सक्सेस नहीं होता। अभी आज की तारीख में जो लोग जो घर पे मतलब मजबूरन होके करते हैं, और जी जो जो लोग यूज टू हुआ है, मतलब हेयर स्टाइलिस्ट का साथ में हो, ब्यूटिशियन का साथ में हो, फ्रंट डेस्क मैनेजर से हो, मतलब अपना फ्लोर मैनेजर से, मतलब एक एक फैमिली जैसा एक ये रहता है। तो हेलो रिलेशन। कैसे हैं, क्या है, मतलब एक पॉजिटिव वो उनको चाहिए, मतलब और एकदम बोलते हैं ना वो अवेयरनेस, पॉजिटिविटी, हाँ अरे कैसे है भाई, क्या है, ऐसा। और मैं ये तक भी मैं अपना एम्प्लॉय को बोला हूँ, देखिए मतलब कैसा है, कैसे हैं, बिल्कुल मत पूछिए, आइए मैम बैठिए, आइए सर बैठिए, आपका बिल्डिंग में क्या हो गया, आपका बाजू में क्या हुआ, नहीं, पहले आप 100% बात करते हैं, तो आप अभी आपको सिर्फ 5%, 2% जितना काम का है उतना ही बात करो, ऐसा इतना तक भी मैं मेरा एम्प्लॉय को भेज दिया हूँ। तो सुमा शेखर जी, आपको लगता है कि जो सर्विसेज का जो प्राइस है वो अब थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से सैलून्स बंद रहे हैं, और शायद से थोड़ा बिजनेस पे भी हमने डिस्कस करा कि इम्पैक्ट हो सकता है, तो क्या प्राइसेस सर्विसेज के बढ़ जाएंगे लॉकडाउन के बाद? सही सही मैडम, नेचुरली बढ़ना चाहिए इन द सेंस। हम लोग लॉकआउट किया इसलिए रेट बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेट बढ़ाते हैं इसलिए कि कस्टमर को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो हम लोग कपड़ा डालता था, पहले अपना कपड़ा डालता था, वो वॉश में जाता था, फिर वॉश करके आता था, हम यूज करते थे। लेकिन जी अभी ऐसा नहीं, कस्टमर ऐसा नहीं मानेंगे, वो वॉश किया दुकान का, अभी यूज एंड थ्रो कपड़ा चालू किया हम लोग, तो उसको जी पैसा लगता है। सैनिटाइजर देना पड़ेगा अपने को, कंपलसरी सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, सैनिटाइजर का पैसा लगता है। तो साबुन का पैसा लगता है, साबुन धोने का, ये जो अपना मटेरियल बार बार धोना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, उसके लिए तो पैसा लगता है। फिर बिजनेस का 3 चेयर में हम लोग बिजनेस करता था, तो 2 चेयर पे आ जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीज का लिए जो हम लोग कस्टमर के लिए स्पेशल केयर लेते हैं, स्पेशल केयर का पैसा लेते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आजकल हम लोग छोटे छोटे शहर में भी है, पहले हम लोग एक सम ले पैसा लेता रहे, एग्जाम्पल भी 100 रुपए लेता था, आजकल 150 रुपए लेते हैं। अब मतलब वो 50 रुपए उसको खर्चा है, वो कस्टमर से लूटता नहीं है, उसको नेसेसिटी जो पैसा वो खर्चा कर रहा है वही पैसा ले रहा है। इन द सेंस वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके जा रहे मैडम, प्लीज। वही एंड सब तो, सर, इसलिए कस्टमर भी सर, कोऑपरेट करना चाहिए, कस्टमर कोऑपरेट करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए कस्टमर। हाइजीन से वो काम होता है सब कुछ, इसलिए कस्टमर भी खुशी खुशी से देना चाहिए, और दे रहे हैं भी।
कस्टमर उल्टा सजेशन देता है, और भी ये करो, हम पैसे दे दें को तैयार है। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है मैडम। So Shiva sir, do you think आपके सैलून के प्राइसेस बढ़ रहे हैं for your customers to get your services? ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा जो खर्चा होएंगे जो हाइजेनिक के लिए है, थोड़ा कोई चीज में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी सबका बिजनेस सब एक तरीका नहीं रहता है। सबका बिजनेस मतलब अभी डाउन हुआ है, उनको भी प्रॉब्लम रहता है। वैसा जो अपने को जो लगता है 100 रुपया जो भी किट पे लगता है, तो अपने 50-50% मतलब वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस का 50% ले सकता है ऐसा। So I think ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है हमारा कि कैसे हम अपने इकोनॉमी को खोलेंगे, तो बिजनेसेस क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं कि कस्टमर्स उनके, स्पेशली जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, ब्यूटी हेयर सैलून इंडस्ट्री, कि कस्टमर सेफ फील करें, दे कम टू द पार्लर एंड वो अपनी सर्विसेज को अवेल करें। सोमा शेखर जी की जो संगठन है वो काफ़ी इस चीज़ पे काम कर रही है, छोटे सैलॉन्स के साथ, मीडियम सैलॉन्स के साथ, कि वो अपने हाइजीन मेंटेन करें सो दैट कस्टमर्स कम। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी बाबा कम्युनिटी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये बिजनेसेस रन करें उनके लिए। And for Shiva sir, I think it's he's a veteran now. वो उनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत मजा आया जब मैं रिसर्च कर रही थी स्टॉक के लिए। He used to earn 30 rupees per month in Mumbai, एंड फ्रॉम देयर वो बीच में उनको अपॉर्चुनिटी मिली कतर जाने की, दोहा, एंड देयर ही कुड वर्क ऑन सम सेलिब्रिटीज, किसी ने उनका टैलेंट रिकॉग्नाइज करा, एंड सर मुंबई वापस आए एंड नाउ ही इज ओनर ऑफ 20 salons, सोल ओनर, नो इन्वेस्टर्स। सर आई होप इफ आई एम राइट, आपके कोई इन्वेस्टर्स नहीं है कुछ, सब कुछ होली ओन्ड बाय यू, अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं। यस मैडम, 100%। यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई फंड नहीं, सिर्फ बैंक का साथ में मेरा ये अच्छा रिलेशन है। बैंक से पैसा लिया हूँ, बाकी बहुत प्राउड फील होता है ये इंडस्ट्री में, मतलब वन मैन, मतलब इतना, मतलब वो भी मैं सोचता हूँ मेरा एम्प्लॉय की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि उनका प्यार है। बिफोर वी गो, एक बहुत अच्छा सवाल आया जो आई थॉट कि मुझे पूछ लेना चाहिए कि आप कुछ ऐसा करें कि आप अपने कस्टमर्स को रीच आउट करें, मार्केटिंग करें उनको बताने के लिए कि आप कौन कौन से मेजर्स ले रहे हैं, ताकि मतलब जो और भी सैलून्स हैं वो भी ये कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, कि उनको कैसे बताएं कि हम ये सब कर रहे हैं तो आप बहुत सेफ फील करें हमारे सैलून में आने के लिए। तो ऐसी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज हो रही है? ये अपना फेसबुक में सब अपना अपना जो जो कस्टमर डेटा, जो डेटा है उसमें सबको जो अवेयरनेस फील करने के लिए ये सब भेजना चाहिए। मतलब देखिए हम लोग ऐसा सा पूरा ये कर रहे हैं, जो हर चीज़ हम लोग ये मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग फलाना वो कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब कॉन्फिडेंस, जो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, उनको मोटिवेशन देना चाहिए। आप बेफिक्र अपना पास आइए, हम लोग ऐसे सा, आप मतलब वो कस्टमर एक बार आके देखेंगे, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत अच्छा, एकदम वही कस्टमर ही बोलेंगे, अरे यार तुम जा, अरे आप जाइए। मतलब ये इतना पॉजिटिवली हम लोग वहाँ पे उनको सर्विस देना चाहिए, कस्टमर का माइंड भी वो घर तक जाना चाहिए। वही बात, क्योंकि जो मेरा जो है ये ऐसे ही हुआ है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 10 से 20, 50, मतलब ऐसे जो पब्लिसिटी अच्छा कोई पॉजिटिव अपने को रिटर्न आता है। मतलब ये अवेयरनेस हर कोई सैलून वाला मतलब देना चाहिए, देखिए हम लोग ये कर रहे हैं। एंड सोमा शेखर सर, जो थोड़े मीडियम सैलून्स हैं या जो 1 person 2 people सैलून्स हैं, वो कैसे कर सकते हैं कि अपने कस्टमर्स को रीच आउट करें और बताएं कि हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्लेanलीनेस, हाइजीन, सैनिटाइजेशन, तो वो क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? इसलिए नहीं, ये आजकल चालू कर दिया, जो श्रीराम जी ने बोला, जो जो सोशल मीडिया है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम में, वो तो बड़ा वो लोग का है, लेकिन मोस्टली सबका पास भी व्हाट्सएप है आज के दिन।
हाँ व्हाट्सएप जी पे सब लोग व्हाट्सएप में है। और जो कस्टमर ऐसा है कि एक बार सैलून में आया, उसको अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से बात किया, उसको अच्छे सेवा किया, जो दूसरा दूसरा सैलून पे नहीं जाते। वो सीरम जी का सक्सेस का जो सीक्रेट जो है वही है, जो एक बार कस्टमर है उसको जो सेवा दिया, बहुत अच्छा सेवा दिया, उसको बढ़ाते ही गया। सब जगह पे वो फॉलो कर रहे हैं, शिवराम जी को बहुत फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भंडारी समाज में बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी उसको अपना जो मीटिंग जो होते हैं उसमें ये भी एग्जांपल लेके बात करता है। लेकिन दुकान में भी बोलते हैं हम लोग अपना अपना व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं। तो अपने से होशियार है मैडम, आजकल का जो यंगस्टर्स है बहुत होशियार है। वो लोग व्हाट्सएप में डालते हैं, वो लोग उल्टा सब फोटो वीटो सब डाल के हाइजीन का, वो किट का है, मास्क का है, ये सब डाल के फोटो करके डाल के हम लोग के पास ये सब कुछ है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास आ जाइए, देख लीजिए, आजमाइए मेरे को। अगर नहीं है तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, सजेशन भी कीजिए। ये हिसाब जी से चलते हैं। एक रिलेशन डेवलप हो चुका है बार्बर शॉपों में, सैलून में, और जो ब्यूटी पार्लर में जो कस्टमर जो है वो एक से दूसरे को, दूसरे के तीसरे से, नहीं इधर जाएगा तो अच्छा है, वही सबसे बिजनेस चल रहा है मैडम। तो यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। और फोन करके बहुत फ्रेंडली है उसको, वो उसको भी फोन किए कि परसों एक कहानी बताया था। एक रेगुलर कस्टमर है, महीने में बाल काटने के लिए आते हैं, वो 3 महीने से लॉकडाउन था, आया नहीं। ये ऐसे फ्रेंड बोल के फोन किया उसको, अरे बाल काटने को आए नहीं, कह रहे अरे कैसा आएगा यार, कोरोना का आए तो क्या करेगा मैं। तो अभी भी लोग फील करने वाले ये भी है, थोड़ा डर बैठा हुआ, वो डर को हम दूर करना चाहिए। और वो दूर करना चाहिए ऐसा नहीं होएगा, वो सैलून आके देखेगा तो ये हाइजीन, ये सब जो व्यवस्था है वो देखने के बाद उसको भी फील बढ़ेगा, उसको भी गारंटी होगा नहीं इधर जाने के बाद हम सेफली जा सकते हैं। वो फील होना तो चाहिए कस्टमर को। और गारंटी भी देते मैडम, आपका माध्यम से कस्टमर को मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि कोई घबराने का नहीं, कोरोना कोरोना हमारा सेफ में हम रहेंगे। और आप जो हम लोग का लिए ग्राहक जो है आप है, हमारे लिए भगवान है, हमारा अच्छे से सेवा करेंगे, कोई भी कोताही बरसेगा नहीं, छोटा हो या बड़ा हो। शिवराम जी तो हाई फाई करेगा, वो ये तो एग्जांपल दिया चप्पल भी बदलने का, यूज एंड थ्रो करने का, अंदर आने का टाइम, तो इतना तो हम लोग छोटा वाले नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो गारंटी है कि हर मेजर पे क्लीन और नीट, और जो भी गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन जो है उसको हम लोग फॉलो करके आप लोगों का सेवा करेंगे। So it was wonderful chatting with both of you. Thank you taking out so much of time. I think हम अपने businesses खोल सकते हैं थोड़े और aware होके, अप समझ के कि हम कैसे ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन मेंटेन करें, ताकि लोग सर्विसेज को अवेल कर पाएं। वो करना चाहते हैं अवेल, वो जो डर है वो आई थिंक बेटर इक्विपमेंट यूज करके अपने सैलून में हम कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स और सैलून की बात नहीं, आई थिंक एवरी इंडस्ट्री में हमें ऐसे कुछ नॉर्म्स को लेके आना पड़ेगा। तो I think I had wonderful time. It was a delightful conversation. I think my audiences को भी पसंद आया. We got a lot of audience questions. तो हम ये conversation खत्म करते हैं एक बहुत ही प्यारे से song से जो हमने iCan के लिए बनाया है. So it's a very uplifting song. So we'll just play it in a second. We'll play थैंक this यू song. मैडम, बहुत अच्छा काम आपने किया, लोगों के लिए हिम्मत बढ़ाया। प्लस जो इसमें जो तकलीफ है ये समझ में भी, वो लोग भी इंसान है, वो लोग को जो तकलीफ है वो भी आपका माध्यम से लोगों तक पहुंच गया, सरकार तक पहुंच सकता है। वो जो गवर्नमेंट ने बैठा हुआ वो लोग भी इसका बारे में देखे, ये समाज का बारे में देखे, वो लोग को कुछ करे, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और वंस अगेन आपको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि ये हमारा जो ये प्रोफेशनल को आप आगे आके वर्ल्ड वाइड या आज ये कार्यक्रम किया आपने, रियली अप्रिशिएट करता हूँ मैडम। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Shiva sir, for joining us. Thank you. जान है तो जान है। Thank you very much. Thank you. मुश्किल है आन पड़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can. I can, you can, we can, India can.
मिलकर हाथ बटाए तो टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी। आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं। मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you.